Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 3.2, page number 57, question number 1 and 2. Question number 1 is question number 1. Question number 1. Which of the following options is true and why? Why? y y is equal to 3x plus y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions. इन तीन solutions में हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है. Dear students, if we put x is equal to 1, when यहाँ पर अगर हम लिखेंगे when x is equal to 0, then y is equal to 3 into 0 plus 5, which is equal to 0 plus 5, which is equal to 5. When x is equal to 1, हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वैल्यू दे सकते हैं. Then y is equal to 3 into 1 plus 5. 3 1s हो गया 3 plus 5 which is equal to 8. When x is equal to 2, then y is equal to 3 into 2 plus 5. That is equal to 3 to 6 plus 5. 6 plus 5 which is equal to 11. Day. लिखेंगे हम. तो इसका मतलब है अगर हम x को कोई भी वैल्यू देते हैं, कोई भी रियल नंबर वैल्यू देते हैं, तो उसी के मुताबिक y का वैल्यू आता है. लिहाजा ये काम रुकने वाला नहीं है, कभी रुकने वाला काम नहीं है. तो हम लिखेंगे hence the given equation, given linear equation has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Because for every value of x, for every value of x का कोई भी वैल्यू, x को हम कोई भी वैल्यू हम देंगे, there is a corresponding value of y. तो उसी के मुताबिक y का भी वैल्यू निकलता है. एक बार फिर हमें इक्वेशन है y is equal to 3 है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर है 57, पेज 57 आपके टेक्स्ट बुक पर. वही है y is equal to 3x plus 5 when x is equal to 0. वही है y is equal to 3x plus 5. ये इक्वेशन है हमारे पास. हमने ये बता देना है कि इसमें इसमें यूनिक सोल्यूशन है, इसमें नो सोल्यूशन है, या ओनली टू सोल्यूशन इसमें है, या इसमें इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है. When x is equal to 0, then y is equal to 3. x की जगह मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया plus 5. 3 into 0 हो गया 0 plus 5 which is equal to 5.
इसी तरह मैंने जब x का वैल्यू 1 लिख दिया, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया प्लस 5, 3 1 हो गया 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8. When x is equal to 2, then y is equal to 3 into 2, 3 into 2 plus 5, 3 2s हो गया 6 plus 5 which is equal to 11 and so on. तो इससे हमें इस नतीजे से हमें इस जो ये हमें रिजल्ट आ रहा है, इससे हमें ये नतीजा मिलता है, hence the given linear equation has infinitely many solutions, because ये काम रुकने वाला नहीं है, हम जितने वैल्यू x को देंगे उसी हिसाब से y के वैल्यू आगे निकलते हैं. Infinitely many solutions because for every value of x there is a corresponding value of y. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे. Question number 2 is write 4 solutions for each of the following equations. Question number 2, write 4 solutions for each of the following equations. Number 1, we have इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 7 is equal to 2x plus y is equal to 7. हमने 4 सोल्यूशन इसकी निकालने हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं implies y is equal to 7, 2x जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, वहां जाके माइनस बनेगा -2x. पुट पहला वैल्यू जब हम इसका निकालेंगे, ये y इसके बराबर है, तो हमने पुट y x करना है. पुट x is equal to 0, then y is equal to 7 minus 2 into 0 which is equal to 7 minus 2 zeros हो गया 0 which is equal to 7. पुट ये पहला सॉल्यूशन हो गया. x is equal to 1, then हाँ आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू देंगे, लेकिन उस्ताद को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वैल्यू सबसे आसान हो, ताकि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो. तभी मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ. x is equal to 1, then y is equal to 7 minus 2 into 1 which is equal to 7 minus 2, 2 1s हो गए which is equal to 5. 7 minus 2 is equal to 5. Put x is equal to 2, then y is equal to 7 minus 2 into 2, 2 into 2. इन दोनों को आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो ये 7 minus 2 2s हो गया 4, 7 minus 4 is equal to 3. Put x is equal to 3, then y is equal to 7 minus 3 into 3 which is equal to 7 minus 3 3s हो गया 9. यहाँ 9 में से यहाँ 9 में से 7 निकालेंगे तो वहां रह गए -2, क्योंकि 9 का जो साइन है वो माइनस है, लिहाजा यहाँ माइनस साइन रहेगा. तो हम लिख सकते हैं हेंस पहला सॉल्यूशन है 0, 7.
0,7, दूसरा सोल्यूशन है 1,5, तीसरा सोल्यूशन है 2,3 और चौथा सोल्यूशन है 3,-2, 3,-2 or the solutions of the given or the 4 solutions लिखेंगे और the 4, क्योंकि हमने 4 ही निकालने हैं, 4 solutions of the given equation। तो इस तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. Question number 4, the given equation is, the given linear equation is x minus 2y is equal to 4। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, या इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो है 0,2। हम लिखेंगे पुट x is equal to 0 and y is equal to 2 in equation first we have। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, x की जगह हमने 0 डालना है और y की जगह 2 डालना है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 0 minus 2 into 2 is equal to 4 which is equal to minus 4 is equal to 4। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट हमें आया ये इनकरेक्ट है, which is incorrect, ये सही नहीं है। therefore 0,2 is not the solution of the given equation, is not the solution of the given equation। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं पढ़ रहा हूं। चेक which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। पेज नंबर 57 है टेक्स्ट बुक पर। तो पहला पार्ट जो है हमने ये बताना है कि 0,2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब ये जो पहला है ये हम कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्कस करेंगे। तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो x को हमने पुट ये करना है और y को ये पुट करना है। तो मैंने लिखा पुट x is equal to 0 and y is equal to 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। इस इक्वेशन का मैंने नाम रखा था फर्स्ट। वी हैव x की जगह मैंने 0 लिखा और y की जगह मैंने 2 लिखा, हो गया 2 into 2 is equal to 4। ये 4 है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आ गया is equal to 4 which is incorrect, क्योंकि ये -4 है, ये +4 है। Therefore 0,2 is not the solution of the given equation। इसके अब 4 पार्ट और हैं वो आप खुद करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। और बच्चों इसका जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो स्क्रीनशॉट लिया करें ताकि आपके पास ये डिटेल मौजूद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the given equation 2x plus 3y is equal to k। हम लिखेंगे we have 2x plus 3y is equal to k। ये हमारे पास इक्वेशन है और given that ये हमें दिया हुआ है x is equal to 2, given that x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of, या यहाँ पर आप given that के बजाय आप since लिख सकते हैं, छोटा लफ्ज है। Since x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the given equation, therefore we use x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation first. In equation first we get 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k। Implies 2 2's हो गया 4 plus 3 is equal to k। Implies 7 is equal to k। Hence अब हमें k का वैल्यू जो हमने निकालना था k का वैल्यू निकल गया। एक बार फिर हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 57 है। We have 2x plus 3y is equal to k। इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन फर्स्ट। Since x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the given equation। ये वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो मैंने ये लिखा गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। Therefore we use, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन में। Therefore we use x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation first। we get 2 into 1, 2 into 2 क्योंकि x का वैल्यू 2 है प्लस 3 into 1 क्योंकि y का वैल्यू 1 है is equal to k। 2 2's हो गया 4 प्लस 3 1's हो गया 3 is equal to k। 4 plus 3 is equal to 7 is equal to k, hence k is equal to 7। तो इस तरह से बच्चों हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को घर में दोबारा खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।